टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाज़िम आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देखने वालों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारा चैनल आप लोग देख रहे हैं, और एप्रिसिएशन भी आ रहा है हमें कमेंट्स के थ्रू कि अच्छा जा रहा है हमारा प्रोग्राम, लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं वो एक चर्च के फादर हैं। आज हम हैं परेल में राठौड़ मेमोरियल चर्च में। इसमें अलग अलग सेक्शंस है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है। तो आज हम हमारा जो फादर से मिल रहे हैं वो है तमिल के हेड ऑफ़ द प्रीस्ट है। तो मिलते हैं आज हमारे मेहमान से जो कि चर्च के एक पास्टर है, फादर है। फादर स्टीवन, आप हमारे देखने वाले को बताइए इन शॉर्ट अपने बारे में, शॉर्टली कि आप इस ओहदे पे आए तो कैसे आए, आपने क्या अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, जो भी है मेहनत आपकी लगी। First of all, I want to thank Town Stories for inviting me to this show, and I want to thank Nadim Bhai for helping me to do this show. My name is Stevens Dola. I am a father of the Ratar Memorial Methodist Telugu Church, and I want to say briefly about myself that how I became a church father. I did my BA from Bombay University, and I did part of my theological studies in Australia, and then I did my MA in sociology from Shivaji University, and I did my PhD from Bombay University in philosophy. And I have been working in this church, in the Methodist Church, for the last 44 years. So I am really glad to be here to share my experiences in this show. हमारे देखने वालों को बताइए कि एस्पिरेशन को पुशअप कैसे किया जाए ताकि हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। हाउ टू डू डैट? It is good to have aspiration in our life. Everybody has an aspiration. It's a very high goal that we have. But in order to achieve this goal, we have to break it up into smaller goals so that we go step by step in achieving our aspiration. This aspiration to become something, to become somebody, and also to be a useful member of society, because we are part of the society, and man being a social animal, he cannot think only about himself. He has to think about the society around him, how he can help others in so many ways, in a psychological way, in a physical way, and also in a social way, how we can uplift people. So aspiration is something, it's bigger than our life. It really helps us to move forward, and it can last till the end of our life. Aspiration does not end. It keeps on going, because as you go on in society, as you go on getting older in life, you have to do so many things for so many people, and that gives us a sense of fulfillment in our life. When you have that long-term goal, we need to break it up into smaller goals. Like, for example, anybody who wants to become a doctor, he has to see that he studies chemistry, physics and maths in his 12th standard and do well in it. Then he has to write his entrance exam, and he has to get through it,
and after that, since the MBBS exams are very difficult, he has to put all his mind, body and soul into it, and he has to give all his attention and time for studying, cutting down on other things like watching TV or social media and all unnecessary things he has to put aside, so that he concentrates upon his studies. Along with that, a personality of helping others should be developed in him. Unless you develop that fellow feeling and you are willing to help others in that in the physical sense, when somebody is sick, you need to really feel for the person, but at the same time one has to be clinical in how he does his medical work. So side by side, along with your knowledge, the medical knowledge, there has to be a development of a sensitivity towards people who are not well, because apart from giving medicine, the words that the doctor says to the patients is very important. When the doctor says certain things in a positive way to the patients, that you will be well, not to worry about his sickness, that you will get well very soon, I think these words have real impact upon the mind of the person along with the medicine. So it is not just having the medical knowledge, but also knowing how to make people comfortable and willing to communicate, willing to listen to what the patient tells you. So in this way, the development of a person to become a doctor, he has to go a long way right from the beginning, in not only in studies, but also to empathize with people, and also to be a good listener, be a good counselor, and also to give a proper diagnosis and to follow it up. In this way, he will be a doctor of good reputation and a doctor of fame, because when people know that you are empathetic with people, people naturally will come to you for help, in not only for their physical well-being but also for their mental well-being. हर एक में आकांक्षा ज़रूर होती है और रहना भी है, क्योंकि जो कुछ हमें बनना है उसके लिए आकांक्षा ज़रूरी है। लेकिन जो भी हम बनना है उसके लिए बहुत ही गोल का ज़रूरत है, छोटे छोटे गोल का ज़रूरत है। जैसे एक इंसान अगर डॉक्टर बनना है तो उसका स्टडीज़ में जो भी डॉक्टर कोर्स के लिए ज़रूर है, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ना है, और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास होना है। उसके बाद हर एक साल, मतलब जो भी MBBS का 5 या 6 साल का जो कोर्स है, हर एक साल में पास होना है तो बहुत सा मेहनत करना है। इस तरह वो पास होते हुए आगे बढ़कर डॉक्टर बन सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी के साथ उसका जो पर्सनैलिटी भी चेंज होना है, मतलब लोगों से कैसे बात करना और उनका तकलीफ़ जानने के लिए कोशिश करना। इस तरह जब भी हम करेंगे तो एक अच्छा डॉक्टर हम बन सकते हैं और लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन को पुश करके आगे बढ़ना, इसमें एफर्ट लगता है, वो हम करना नहीं चाहते। तो क्या ये ठीक है? क्या ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए? इसके ऊपर आपको क्या? कंफर्ट जोन में रहने से प्रोग्रेस नहीं होगा। जहाँ हैं हम वहीं पे रह जाएंगे और एक रूटीन बन जाएगा। ये रूटीन से क्या होता है कि सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना,
ऐसे सालों गुज़र जाएंगे हमारे ज़िंदगी में। अगर हमको प्रोग्रेस करना है तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना मतलब है कि हमें रिस्क लेना है। रिस्क लेने से कभी फेलियर भी हो सकता है, लेकिन कुछ हम लेसन ज़रूर उसमें हम सीखेंगे। और 2-3 बार अगर फेलियर होगा भी, लेकिन ज़रूर एक दिन हमें सक्सेस भी मिलेगा, हम यश पाएंगे। तो इसलिए रिस्क लेना ज़रूर है, क्योंकि तभी हम लोग प्रोग्रेस हो सकते हैं। और बहुत से हम हमारे फेलियर से सीख भी सकते हैं। मैं मेरे बारे में एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि सालों पहले जब भी मैं पढ़ रहा था और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक चांस मिला था, और एक इंसान ने मुझे 1 वे टिकट के लिए पैसे दिए, लेकिन क्योंकि उन दिनों में 6,000 भी बहुत बड़ा रकम था। वो पैसे मेरे पास नहीं थे, मेरे पिताजी के पास भी नहीं थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था। लेकिन एक मेरे फादर के जो फ्रेंड था, उन्होंने मुझे 1 वे टिकट ख़रीद के दिया था। तो जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मुझे मालूम था कि वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता था, और मैं ये नहीं सोचा कि मैं वापस कैसा हूँ। लेकिन मेरा एस्पिरेशन, मेरा जो गोल था, मेरा जो आकांक्षा था कि मैं ये बाइबल का स्टडी करूं, एक डिग्री में पाऊं। इसलिए मैंने रिस्क लिया और आगे बढ़ गया। और मैं वहाँ जाने के बाद मेरा थियोलॉजिकल स्टडीज़ कंप्लीट किया और काम भी किया। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स किया और पैसे कमाने के बाद वापस आने के लिए मैं टिकट लेकर वापस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा, क्या तकलीफ़ आएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ बोलेंगे, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम समझेंगे कि नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, मुझे गॉड हेल्प करेगा और लोग भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें गॉड का भी हेल्प चाहिए और लोगों का भी हेल्प चाहिए, दोनों का हेल्प हमें चाहिए। लेकिन हम भी हमारे जो तकलीफ़ है लोगों को बताना पड़ता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। तभी लोग हमें, बहुत से लोग हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें भी उनके पास जाना है। मतलब इसमें हमारा एक्शन ज़रूर है। जब भी हम एक्ट करेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे और गॉड भी हमको हेल्प करेगा। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। और कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तभी ही हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। नहीं तो वही के वही रहेंगे और हमारा देखते देखते हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आए, रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है, और हम में ग्रोथ आना है। आज जो हम दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें हम लोग बच्चों को नसीहत भी करते हैं और एजुकेशन के लिए मेहनत भी कराते हैं, करते भी हैं। एजुकेशन के रूप में हम एक्चुअली इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे। लेकिन विजडम का क्या, यानी जो बुद्धि हमारे में आनी चाहिए, बुद्धि का क्या है, और यानी कि हिकमत की जो बातें होती है वो कैसे आए हमारे अंदर, बच्चों के अंदर वो सलाहियत कैसे पैदा हो, तो इसके बारे में असर आप बताइए। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन के साथ विजडम भी होना चाहिए, यानी बुद्धि होना चाहिए। सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो हम कैसे हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, और ताकि जो कुछ हमने सीखा है हम दूसरे के साथ शेयर करना है। कैसे शेयर करेंगे? तो जो हमने इन्फॉर्मेशन पाया है उसके बारे में सवाल करना है कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। इस तरह अगर हम सोचेंगे तो हमारे नॉलेज, सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन हमारी बुद्धि में हम आगे बढ़ेंगे।
जैसे जेम्स वॉट नाम का एक आदमी था, जब भी वो छोटा था तो उसने अपने पिता को पूछा था कि जैसे ही पानी बॉयल हो रहा था तो उसका ऊपर का लिड ऊपर उड़ रहा था। तो उसने पूछा तो उनके पिताजी ने उनसे बताया कि ये स्टीम के वजह से वो लिड ऊपर उठ रहा है, जब इस स्टीम ख़त्म होता है तो लिड नीचे आ रहा है। तो इसके बारे में जेम्स वॉट सोचने लगा, और जैसे वो बड़ा हो गया तो उन्होंने लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया, जैसे कि एक पाइप में बहुत सा स्टीम डालकर और उससे एक व्हील को उसने आगे बढ़ाया। तो इस तरह आज हम इस लोकोमोटिव स्टीम इंजन को हम देख रहे हैं। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जानकारी अपने पिता के पास पाया था उसे उन्होंने एक आविष्कार किया, और उससे समाज के लिए उसने एक बहुत अच्छा काम किया, ताकि लोग इधर उधर जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं और नए नए जगह देख सकते हैं और इस जगह के बारे में जान सकते हैं बहुत से चीज़। इस तरह बहुत सा फ़ायदा समाज को हुआ, क्योंकि जेम्स वॉट ने अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको बुद्धि में बदल दिया। इसी तरह हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हम हमारे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए कैसे इसको उपयोग करना है, जब भी हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आविष्कार हम जरूर कर सकते हैं, जिससे समाज को हम एक बेनिफिट दे सकते हैं, ताकि हम इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं लेकिन आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। इसलिए ये जो हम बहुत सा सीखते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रिसर्च करना है, ताकि हम कुछ नया सीखें। इसके लिए हम सवाल करना है कि ये ठीक है क्या नहीं, अगर ठीक नहीं है तो इसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जो कुछ पहले हो रहा था उसी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए सवाल करेंगे और नॉलेज को बढ़ाएंगे और बुद्धि को भी बढ़ाएंगे, ताकि हमारी जो जानकारी है सबके लिए वो यूज़फुल हो जाए। अगर हम हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारे स्टडीज़ में एक खोजी बनना है, मतलब सीकर बनना है, ताकि जो कुछ हमने जानकारी पाया है इसके बारे में हम एक सवाल उठाकर उसको हम ऑब्ज़र्व करना है। जैसा न्यूटन जब भी पेड़ पे से एप्पल नीचे गिर रहा था, वो सिर्फ देखा नहीं लेकिन उसको ऑब्ज़र्व किया, और ऐसे करने से उन्होंने ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया है। तो कुछ हमें डिस्कवर करना है या कुछ इन्वेंट करना है तो ये ज़रूर है कि हम बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करना है, ताकि हम नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। जो नॉलेज यूज़फुल है सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन समाज के लिए, हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए जो यूज़फुल है, हम कुछ ना कुछ आविष्कार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम डिस्कवर कर सकते हैं, ताकि हमारा लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटल लाइफ आगे बढ़ सके। सुइसाइडल टेंडेंसीज़ हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार आती है। इसका विचार कभी ना कभी एक ज़िंदगी में आता है हमें। ज़िंदगी को जीते हुए ऐसी कौन सी कैफियत है जो इस ख़याल को जनरेट करती है? क्योंकि देखा गया है आज के दौर में नेट के थ्रू आपको पता चलेगा कि जापान
सुसाइडल टेंडेंसीज़ में या केस में नंबर 1 पे है, और उसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड। ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो ये थोड़ा इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसा जापान और स्विट्ज़रलैंड और कई और डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और जैसे लोग बहुत से चीज़ अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग अकेलापन महसूस करते हैं अपने ज़िंदगी में कि हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और हमेशा काम करते रहते हैं। तो इससे डिप्रेशन होने का कॉज होता है कि अगर हम सिर्फ काम ही करेंगे और हमारे फैमिली को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे फैमिली को हम हैप्पी नहीं रख सकते हैं। तो हैप्पीनेस स्टार्ट होता है फैमिली के साथ। जब भी हम फैमिली के साथ रहते हैं, उनका सपोर्ट और उनका लव जो हमें मिलता है, वो बहुत ही हमारे लिए काम में हेल्प कर सकता है। तो इसलिए लाइफ और वर्क का एक बैलेंस होना है, ताकि हम हमेशा काम ही नहीं, लेकिन हमारे फैमिली लाइफ को भी हम संभालेंगे, ताकि हम हमारे जो एक्सेप्टेंस और लव जो है हमें मिलता है हमारे फैमिली से, उसी तरह हम भी फैमिली को हमारा लव और एक्सेप्टेंस कंट्रीब्यूट करना है। दोनों साइड से होता है, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ काम ही नहीं, लेकिन हम हमारे फैमिली में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है और हमारे समाज में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और इस तरह हमारे लिए फ्रेंड्स का भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वो लोग हमें सपोर्ट करें। जब भी हम हमारा जो तकलीफ़ है हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग हमें कुछ एडवाइस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, encourage कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए फैमिली का ज़रूरत है और फ्रेंड्स का भी ज़रूरत है। इसलिए जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है, वैसे हमारे देश में ना होना है। तो हम हमेशा याद रखना है कि हम आखिर में हमारे तकलीफ़ में हमारे साथ रहने वाला है हमारा फैमिली। लोग सब हमें छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारा फैमिली हमारे साथ रहेगा। तो ये फैमिली वैल्यूज़ को हम प्रिजर्व करना है, ताकि क्योंकि फैमिली हमारा सपोर्ट है और हमें साथ देगा, और जो भी हमारे ज़िंदगी में क्राइसिस है, क्राइसिस में से हमें बाहर निकालेगा और वापस हम जाकर काम कर सकते हैं। इस तरह हम लाइफ और वर्क को बैलेंस कर सकते हैं। और जो भी हम वर्क करते हैं, वो वर्क को हम सचमुच लव करना है, और वो काम हम पैशन के साथ करना है। ये सिर्फ पगार के लिए नहीं है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। पैसे तो ज़रूर है, पैसे बिना कोई नहीं जी सकता है। हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो काम करते हैं उसको हम लव करना है, प्रेम करना है, ताकि वो एक बर्डन ना बन सके, बोझा नहीं बन सके, कि हम सचमुच वो काम हम बहुत पैशन से और डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में एक तरीका फुलफिलमेंट, एक तरीका हमारे दिल में शांति या जॉय आ सकता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हमारे काम को हम लव करेंगे, प्रेम करेंगे, तो हमें बहुत शांति मिलेगा, पीस मिलेगा, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से हम खुद के लिए और सोसाइटी के लिए हम अचीव कर सकते हैं।
तो इसके लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत से एग्ज़ाम्पल है जो लोग जब भी वो जो प्रोफेशन उन लोग ने चूज़ किया है वो ठीक नहीं तो प्रोफेशन लोग स्विच भी किया है, दूसरा प्रोफेशन लिया क्योंकि ये प्रोफेशन उनको अच्छा नहीं लगा, और जब भी उन लोग ने प्रोफेशन स्विच किया वो प्रोफेशन में वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक टाइम प्रोफेशन स्टार्ट किया तो उसी में रहना, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बदल सकते हैं। यहाँ पे वापस रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जब भी हम रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे पैशन को हम मिल जाएगा हमें, और वो जो काम हमने चूज़ किया है उसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं और कुछ सोसाइटी के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मैं जो अभी एक फादर हूँ, या जो पासबान कहते हैं हिंदी में, मतलब शेपर्ड मतलब लोगों का देखभाल करना, उनके स्पिरिचुअल अफेयर्स को, उनका सोशल अफेयर्स को देखभाल करना, काउंसलिंग करना, कंफर्ट करना, उनके लिए प्रेयर करना, ये मेरा पैशन है। इसमें मुझे बहुत खुशी मिलता है। तो इसलिए मैं ये एक प्रोफेशन नहीं समझता हूँ, ये मेरा कॉलिंग है। कॉलिंग मतलब मुझ में अंदर से बहुत खुशी मिलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और इससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और लोगों का लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, और फैमिलीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आखिर में कितना भी डेवलप हो कंट्री, लेकिन अगर सोसाइटी इस फैमिली वैल्यूज़ में और मॉरल वैल्यूज़ में आगे नहीं बढ़ता है तो उनमें वो कुछ एम्प्टीनेस होता है। तो इसलिए काम के साथ अपना मॉरल वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ प्रिजर्व करना है। इस तरह हम अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। हमें मालूम होगा कि हमारे साथ एक टीम है, हमारा फैमिली है, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा सोसाइटी है जो हमें सपोर्ट करता है। तो और हम और बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं ताकि सोसाइटी हर एक एरिया में आगे बढ़ सके। ये थे आज के हमारे मेहमान फादर स्टीवन। जो बातें इन्होंने बताई है वो एक एक बातें डायमंड की तरह है, अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो। और आप देखिए कि काउंसलिंग की बात यहाँ भी आ रही है। मतलब ये है कि ये मत आप समझिए कि आप हर चीज़ ज़िंदगी में खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। आप एफ़र्ट करके ये काउंसलिंग का जो है अपने लाइफ में एक सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा राब्ता कायम कीजिए जो आपको एक सही दिशा, सही राय आपको मिले और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ वापस से। तो मिलते हैं हम नए प्रोग्राम में फिर से एक बार, और हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। तो टाइम के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक़ रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए